श्री राम जय जय श्री राम, जय श्री राम जय जय श्री राम। अयोध्या नगरी जय श्री राम, या ऐसे सज रही जय श्री राम। भक्तों के सर। Namaskar, Jai Shri Ram. Wish you everyone a very happy Diwali. I'm very privileged that we are able to do this Diwali session of understanding Ram on this auspicious day. So, with your permission, let me begin. We all know the events of Ramayana, right? Since childhood, we have been, reading about them, listening and seeing them in various, TV forms and plays. So, in these three videos that we are doing, I am not able to find any justification of recreating the stories for you because you are all aware of them. What we will attempt to do is try to find out some nuances in the stories which can make you understand Ram a bit better. So that has been the purpose. So in the video before this, the video number 1, we have established Ram as the Maryada Purushottam. We have seen that in order to do the role of Maryada Purushottam, there were very many challenges that Ram had to face, which was basically because of the conflict of the moral conflicts and the ethical conflicts. And he has shown by his exemplary behavior how in this present day context we can navigate whenever we are in this moral or ethical crisis situations, which will happen time and again. So this video number 1 has been helpful in doing that. So in this video we will be able to try to pick up some phrases, some specific words of Hindi and Sanskrit and try to analyze that, and by doing that I can assure you can have a very clear picture of the difference between the characters of Ram and Ravana. They will be as we are comparing light to darkness. So if we have a experience of darkness, we can experience the benefit of light much better. We can appreciate light in a much better manner. Similarly, by the understanding the nuances of these specific words and phrases, the differences in the character of Ram and Ravana will be very clear, and we will be able to understand the finer aspects of Maryada Purushottam Ramchandra ji. So let me begin. The first word that I am picking up is Ram Rajya. See, we have been listening to this word Ram Rajya since thousands of years. There are many kings and many emperors who have had their kingdoms, their Rajyas, but none of them was Ram Rajya. So what is it that Ram Rajya signifies? So let us try to do a deep dive into that. So basically, any Rajya, any ordinary kingdom, it could be Ravana's or it could be any other kingdom, is a power-centric, often dynastic or authoritarian rule. Whereas Ram Rajya, which is the ideal kingdom, is a dharma-centric. So from power-centric, Ram Rajya moves away to a dharma-centric and is rooted in justice and compassion. This is the main governance model which is different. The ruler's motive, whoever is in that kingdom, in that Rajya as a ruler, his objective in the ordinary Rajya will be personal ambition, expansion, control, authority, governance. ये उसका मोटिवेशन रहता है, जबकि राम राज्य में जो मोटिवेशन है रामचंद्र जी का, वो सेल्फलेस सर्विस है, मॉरल ड्यूटी है, पब्लिक वेलफेयर है. This is another huge difference. So by elaborating these differences, we are able to understand what was Ram Rajya and how Ram was able to implement
his way of Maryada Purushottam characteristics into his kingdom. In terms of law and justice, the ordinary Rajya is arbitrary or biased enforcement. जो पावरफुल लोग हैं उनको जस्टिस अलग मिलेगी, उनका लिए लॉ अलग है. Whereas in Ram Rajya, it is transparent, fair and universally applied. पब्लिक वेलफेयर में ऑर्डिनरी राज्य में अनइवन एक्सेस है. जो जिसके पास सोर्स है उसके पास एक्सेस ज़्यादा है, और एलिट को फेवर हर समय ऑर्डिनरी राज्य में होगा. इक्वल प्रॉस्पेरिटी, नो पॉवर्टी, हंगर और इनजस्टिस, ये राम राज्य में है. तो इवन इन दिस मिडवे बिटवीन दिस राम राज्य वर्सेस ऑर्डिनरी राज्य, वी कैन वेल अंडरस्टैंड दैट हमको राम राज्य अभी बहुत दूर है. अभी हम जितने भी राज्य देख चुके हैं इंडिया में एज वेल एज आउटसाइड ऑफ इंडिया, दे आर फार फ्रॉम बीइंग राम राज्य. Emotional climate in an ordinary Rajya is of fear, unrest or apathy amongst citizens, whereas in a Ram Rajya, the general environment, the emotional climate is justice, peace, trust, emotional security है. Spiritual ethos में materialistic, transactional है ordinary राज्य में, जबकि राम राज्य में spiritual ethos elevated है, वैल्यू ड्रिवन है. लीडरशिप स्टाइल पहले भी कहा गया, ऑर्डिनरी राज्य में कमांड और कंट्रोल का है, सबको सेंट्रलाइज करके रखने का है, और राम राज्य में एम्फेटिक है, कंसल्टेटिव है, सैक्रिफाइजल है. जो लीडर है वो सैक्रिफाइस करने को तैयार है. सिंबॉलिक अगर हम माने तो एक ऑर्डिनरी राज्य एक पैलेस जिसके बहुत हाई वॉल्स हैं वैसा हम मान सकते हैं, और एक बैनियन ट्री का एग्जांपल बेस्ट सूटेड है राम राज्य के लिए, जो सभी को बेनिफिट देता है शेड का. कॉमन इन मेनी किंगडम्स अक्रॉस युगास इज द वेरियस राज्यस दैट वी हैव हैड, एंड ओनली इन राम्स रेन इन त्रेता युग डिड वी हैव अ राम राज्य. सो इतने सारे बड़े बड़े किंग्स एंड एम्परर्स आए हैं और चले गए हैं, उनका राज्य फॉरगॉटन और हर समय कॉन्टेस्टेड रहा है, जबकि राम राज्य जो है वो इटर्नल और आइडियल रहा है इन द इंडियन कॉन्शियसनेस जो हमारे अंदर में है. सो विद दिस वी हैव अ गुड आइडिया ऑफ व्हाट राम राज्य इज एंड व्हाट it is that Ram did to make this Ram Rajya possibility in Ayodhya and beyond. अब एक दूसरे वर्ड में कंपैरिजन के लिए आते हैं, संस्कृति और सभ्यता. ये हमें हिंदी संस्कृत में कई बार कंफ्यूजन के जैसे दिखते हैं कि संस्कृति क्या है और सभ्यता क्या है, तो इसका डिफरेंस जानना भी जरूरी है. If you are able to understand Ram's character in a deeper insight. जो संस्कृति है, जो हम राम के संदर्भ में बात करें, वो संस्कृति है इनर रिफाइनमेंट, वैल्यूज, वे ऑफ लाइफ. ये हमारी संस्कृति है. जो रामचंद्र जी का, जैसे हमने पिछले वीडियोस में भी दिखाया, द त्रेता युग हैपेंड anywhere from 9 lakhs to 13 lakhs in that period, but still our way of life, हमारी संस्कृति में राम जी बसे हुए हैं. तो that is the संस्कृति that we are talking about. whereas जो सभ्यता है वो एक्सटर्नल डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, सोसाइटल सिस्टम्स के ऊपर है. वो हम कुछ खड़ा करते हैं टेक्नोलॉजी से या इंफ्रास्ट्रक्चर से, और वो इटर्निटी में रह नहीं सकता. इसका एक टाइम फ्रेम के बाद वो हमने इतने सारे डायनेस्टीज देखे हैं, राइट फ्रॉम द रोमन सिविलाइजेशन टू सो मेनी अदर्स. तो वो आज उनका कहीं नामो निशान नहीं दिखेगा, एक्सेप्ट इन कहीं खंडर दिख जाए तो. बट जो संस्कृति है वो पीढ़ी पर पीढ़ी चलती रहेगी, जैसे हमारे अंदर है. वाई दिस इज इम्पोर्टेंट इज, जो हम संस्कृति की बात करें, हमारी सभ्यता तो है ही जो, और वो सभ्यता विकसित होती रहती है, बट संस्कृति हमारे अंदर, हमारे डीएनए में है. तो संस्कृति, एथिक्स, एस्थेटिक्स, स्पिरिचुअलिटी, ट्रेडिशंस, कस्टम, वैल्यूज, रिचुअल्स, जो भी हमारे रिचुअल्स हैं, जैसे हमने दशहरा मनाया था, हमने दिवाली मनाई थी, ये सब जो रिचुअल्स हैं वो हमारी संस्कृति में आते हैं.
और टेक्नोलॉजी, गवर्नेंस, इकोनॉमी, अर्बनाइजेशन, ये सब सभ्यता में है। संस्कृति बड़ी ग्रेजुअली इवॉल्व करती है ऑर्गेनिकली एंड थ्रू लिव्ड एक्सपीरियंस। वो पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफ़र होती है अपने एक्सपीरियंस से नेक्स्ट जनरेशन को। और सभ्यता जो है वो इंजीनियर्ड है, कलेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन के से है। हमारे आर्ट, म्यूज़िक, लैंग्वेज, रिचुअल्स, हमारी फ़िलासफ़ी में संस्कृति झलकेगी। जैसे हम रामचंद्र जी का इतने नाटक करते हैं और सारे हम उनके प्लेस देखते हैं, तो ये हमारी संस्कृति में आई हुई है। जबकि आर्किटेक्चर, एडमिनिस्ट्रेटिव जो है एस्पेक्ट ऑफ इट, वो हमारी सभ्यता है। संस्कृति ऑफ कोर्स इज टाइमलेस, रेजिलियंट, वो कभी नष्ट नहीं होगी। हम अभी आज जो संस्कृति की बात कर रहे हैं वो हजारों साल बाद भी हमारे बाद भी रहेगी। रामचंद्र जी को ऐसे ही मानेंगे, ऐसे ही हम दशहरा, ऐसे ही हम दिवाली मनाएंगे और भी धूमधाम से। जबकि जो सभ्यता की पार्ट है वो टाइम बाउंड है, वो मे राइज फॉल विद पॉलिटिकल शिफ्ट्स। संस्कृति जो क्वालिटेटिव डेप्थ ऑफ वैल्यूज और विजडम से है, और सभ्यता क्वांटिटेटिव स्केल ऑफ सिटीज, वेल्थ और पावर से है। तो अयोध्या की जो बात करें, जो इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज की हम बात करें, जो मंदिर की बात करें, वो तो हमारी सभ्यता के पार्ट में आएगी, जो इतने सालों बाद भी अभी हमने जागृत की है। बट जो हमारी संस्कृति थी वो कभी डगमगाई नहीं, वो हर समय कंसिस्टेंट चलती रही। एक लोटस का अगर आप एग्जांपल लें, वो हमारी संस्कृति को दिखाता है, और एक ग्रैंड पैलेस जो एक मैन मेड चीज़ है, वो हमारी सभ्यता को दिखाती है। और श्रुति, स्मृति, ये जो है हमारे जो लिव्ड ड्रामास हैं, वो हमारी संस्कृति को दर्शाते हैं। जबकि राज्य में, नीति में, हिस्टोरिकल क्रॉनिकल्स में जो हमारे हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस आते हैं, वो हमारी सभ्यता को दिखाते हैं। बेसिकली जो हमारी संस्कृति है वो हमारा सोल है, और सभ्यता हमारी बॉडी है। बॉडी एज वी नो नष्ट हो जाएगी, और हमारा जो सोल है वो रहेगा। तो बेसिकली जो हमें इसमें डिफरेंस देखना है कि हमारी जो ग्रेटनेस है वो इज इन व्हाट वी आर। हम जो हैं उसी में हम ग्रेट हैं, ना कि हमारे पास क्या है उसके लिए हम ग्रेट हैं। तो हमारा जो कंपेयर टू सो मेनी अदर सिविलाइजेशंस, रोमन्स लेके ग्रीक, जो अभी तक किसी का नामो निशान नहीं है, हमारी संस्कृति की वजह से, जो रामचंद्र जी के से शुरू हुई और उनके पहले भी थी, तो वो जो ग्रेटनेस है वो हमारी संस्कृति से आती है, जो कोई हमसे छीन नहीं सकता। तो आई थॉट दिस पॉइंट इज इम्पॉर्टेंट, सो इट वाज इलैबोरेटेड। एक सूक्ष्म सी डिफरेंस है ज्ञान और बुद्धि में, उसके हम थोड़ा सा आई थिंक यू विल बी अवेयर ऑफ दिस। जैसे रावण को ज्ञान की कमी नहीं थी, नॉलेज की कमी रावण को नहीं थी। ही वॉज अ वेरी वेरी नॉलेजेबल पर्सन। अगर कुछ कमी थी वो इंटेलेक्ट की थी, जो राम के पास वो इंटेलेक्ट था। सो रावण को मानेंगे कि अवेयरनेस, अंडरस्टैंडिंग, नॉलेज, फैक्ट्स को एक्यूमुलेट करना, ट्रुथ को जानना, स्क्रिप्चर्स के अपने एक्सपीरियंस से, एजुकेशन से ये नॉलेज को गेन करना, डीपली एब्जॉर्ब करना, वो सब रावण में भरपूर था। उसको प्रोसेस करना, उसको इवैल्यूएट करना, उसको नॉलेज को अप्लाई करना अपने कैरेक्टर में, राइटियसनेस में, अपने बिहेवियर में, यहाँ रावण की वीकनेस है, जो रामचंद्र जी में ऑलवेज हमें दिखती है। तो एबिलिटी टू यूज नॉलेज टू थिंक, रीजन, सॉल्व प्रॉब्लम्स, ये राम का कैरेक्टर है। थिंक क्लियरली, एक्ट वाइजली, ये राम जी हमें सिखाते हैं। ज्ञान जो है उसको बुद्धि चाहिए, अगर उसको वाइजली उसको इम्प्लीमेंट करना है, और बुद्धि भी बिना ज्ञान के नहीं चल सकती। दोनों को एक दूसरे का दे नीड ईच अदर, बट फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ बुद्धि द राइट ज्ञान इज नीडेड। सो बेसिकली अगर हम आज के युग में कंप्यूटर नॉलेज में लिंगों में देखें, तो डेटा जो है वो नॉलेज है, और उसका जो प्रोसेसर है वो बुद्धि है। जो वॉट है, इस दुनिया का जो वॉट,
वो ज्ञान है, और जो हाउ है वो बुद्धि है। तो ये सूक्ष्म जो डिफरेंस है वो ज्ञान और बुद्धि का, ये रावण और राम के डिफरेंस में हमें दिखता है। दूसरा एक जो डिफरेंस हमें दिखता है एक तपस्वी और साधक का। जो रावण है वो एक तपस्वी हैं, जबकि रामचंद्र जी एक साधक हैं। इन दोनों का डिफरेंस मोस्टली यू आर अवेयर, बट आई एम जस्ट रिपीटिंग सो दैट देयर इज रिकन्फर्मेशन एंड रीइंफोर्समेंट। जैसे रावण है वो तप करते हैं, रिगरस ऑस्टरिटीज करते हैं, पेनेंस करते हैं, सेल्फ डिसिप्लिन में लाते हैं, रिनंसिएशन, एंड्योरेंस, प्यूरिफिकेशन, हार्डशिप्स बहुत करते हैं, कई बार सॉलिटरी में इंटेंस फिजिकली डिमांडिंग उनके जो तप रहते हैं, और उनकी अच्छी मास्टरी है अपने बॉडी पे, सेंसेस पे। उनका जो फायर है वो बर्निंग इम्प्योरिटीज थ्रू हीट एंड रिजॉल्व, ऐसा है। और कभी फास्टिंग कर रहे हैं, कभी प्रोलॉन्ग मेडिटेशन कर रहे हैं, हार्डशिप्स कर रहे हैं, कई बार डिटैच रहते हैं वर्ल्डली कंफर्ट से, और फ्यूरियस, रेजोल्यूट और इनवर्डली फोकस्ड हैं। और ये सब एक तपस्वी के भांति कर रहे हैं एक लक्ष्य को पाने के लिए। जबकि जो साधक हैं, जो रामचंद्र जी का जो मेथड है साधना का, वो है स्पिरिचुअल प्रैक्टिस का, इनर रिफाइनमेंट का, वो डिवोशन का है, लर्निंग का है, ग्रेजुअल ट्रांसफॉर्मेशन का है। हमने पहले भी जो भगवत गीता के इम्प्लीमेंटेशन के वीडियोस देखे थे, उसमें समर्पण भक्ति की बात की थी, सेल्फ रियलाइजेशन की बात की थी। तो ये सब रामचंद्र जी के टीचिंग्स में हमें मिलता है। जो भक्ति है वो मेडिटेटिव है, बट बैलेंस्ड है एथिक्स और सेल्फ डिसिप्लिन से, और रियलाइजेशन ऑफ ट्रुथ और सेल्फ डिवाइन की कनेक्शन है, ये साधना के लिए जो साधक है वो प्रेरित हो रहा है। और जैसे एक सीड धीरे धीरे ग्रो करता है, उसको नर्चर करना पड़ता है, वैसे एक साधक अपनी साधना को नर्चर करता है। और उसकी साधना को नर्चर करने के लिए टेक्स्ट, प्रेयर, मेडिटेशन, ये सब जरूरी है। और वो अपने साधक जो है, जैसे हमने गीता में भी देखा, अपनी दिनचर्या की ड्यूटी में रहते हुए भी अपनी साधना कर सकता है। वो कॉशियस है, डिवोटेड है, प्रोग्रेसिवली इवॉल्विंग है, और परसिवरेंस, गाइडेड एफर्ट, ये साधक की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो राम और रावण की डिफरेंसेस जानने के लिए ये आई थॉट वाज वन वे। ऑफ कोर्स अनुशासन और शासन, ये भी एक सूक्ष्म डिफरेंस है जो मोस्ट ऑफ अस नो। जो राम का जो डिसिप्लिन है वो सेल्फ रेगुलेशन है, इंटरनल ऑर्डर है, वॉलंटरी एडियरेंस है, किसी को जोर जबरदस्ती नहीं है, इंटरनल मॉरल और वैल्यू ड्रिवन है, हमें पर्सनल कंडक्ट, एजुकेशन, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस से प्रेरित करते हैं, रिस्पेक्टफुल हम रहते हैं, सेल्फ अवेयर रहते हैं, ग्रोथ ओरिएंटेड रहते हैं, और हमें रामचंद्र जी के मॉडल में एक कंपास मिलता है, उनके लाइफ से एक प्रेरणा मिलती है, और उससे हम हमारा जो इंटरनल कंपास है वो गाइड रहता है। सेल्फ डिसिप्लिन में हम रहते हैं, सेल्फ मास्टरी रहती है हमारे डिजायर्स की, सेंसेस की, और हार्मोनियल सोसाइटी में हम वॉलंटरीली ये वर्च्यू अपना एग्जिबिट करते हैं। जबकि जो रावण का जो गवर्नेंस का रूल है, जो शासन है, वो एक्सटर्नल कंट्रोल का है, वो अथॉरिटी का है, डर का है, एनफोर्समेंट का है, इम्प्लीमेंटेशन जो जोर जबरदस्ती में है उसका है, एक स्ट्रिक्ट गाइडलाइन का है, और वो हर एक चीज़ के बिहेवियर को, जैसे जो रामचंद्र जी का सेल्फ था गाइडेड, ये सेल्फ नहीं है, ये जो बिहेवियर है वो ऑलरेडी प्रिस्क्राइब्ड है, आपको यही करना है। तो एडमिनिस्ट्रेटिव और पावर ड्रिवन है, और पॉलिसीज एडमिनिस्ट्रेटिव मोनार्की से कंट्रोल रहता है, कमांडिंग है, टॉप डाउन रहता है, जैसे एक फोर्ट्रेस है जिसमें कोई अंदर नहीं जा सकता और वो प्रोटेक्टेड रहती है, वैसा है। इस तरह का हमने अर्थशास्त्र, धर्मशास्त्र ये में देखा हुआ है। और लॉ एंड ऑर्डर, सोसाइटल में स्टेबिलिटी कैसे हो, इस तरह की जो गवर्नेंस है कंट्रोल करने की,
वो हमें रावण के गवर्नेंस मॉडल में दिखती है, जो राम के मॉडल में नहीं है। राम के मॉडल में हमें इंटरनल ही अपने आप को फॉलो करना है, अपना जो मॉरल कंपास है उसको उस लेवल में ले जाने की। ऐसे ही बल और शक्ति में एक सूक्ष्म सा डिफरेंस है। बल जो है स्ट्रेंथ, वो फिजिकल और मस्कुलर स्ट्रेंथ को दिखाती है, वो स्टैटिक है, मेजरेबल है, विल पावर ट्रेनिंग से दिखती है, फाइटिंग, एंड्यूरिंग, जैसे हनुमान की रॉ स्ट्रेंथ वो एक बल की एग्जांपल है। और ये बल जरूरी है प्रोटेक्शन के लिए, परजर्वेंस के लिए। एग्जांपल के तौर पे एक जैसे रॉक है, जैसे किसी ऑब्जेक्ट को हमें लिफ्ट करना है तो हमें बल चाहिए। अब जो डिफरेंस है बल का और शक्ति का वो ये है कि किसी ऑब्जेक्ट को लिफ्ट करने के लिए तो हमें बल चाहिए, पर वो ऑब्जेक्ट हमसे उठा रहे उसके लिए हमें शक्ति चाहिए। तो जो शक्ति है वो बेसिकली पावर और एनर्जी की है। सनातन धर्म में मोस्टली जब हम शक्ति की बात करें वो फेमिनिन शक्ति है, वो दुर्गा से प्रेरित है, वो डायनेमिक एनर्जी है, ट्रांसफॉर्मेटिव फोर्स है, एक्सपेंसिव, सटल और मल्टी डायमेंशनल्स है, वो इनर अवेकनिंग है, विजिबल नहीं है। जैसे हम बल को देख सकते हैं वैसे शक्ति को देख नहीं सकते, तो वैसे रावण का बल हमें दिखता है और राम की शक्ति हमें अदृश्य है, वो हमें एक्सपीरियंस करनी पड़ेगी। तो जैसे हमने एग्जांपल दिया रॉक का बल के लिए, वैसे फायर का एग्जांपल सही है शक्ति के लिए। और हमें क्रिएटिविटी, इंट्यूशन, स्पिरिचुअल एम्पावरमेंट, ये हमें शक्ति से एग्जांपल पे मिलता है। तो ये डिफरेंस मुझे लगा जरूरी है। ऑफ कोर्स वासना और उपासना ये बहुत इजी हैं। आप लोग के रावण ऑलवेज डिजायर से प्रेरित है, वासना में जकड़ है उसकी। उसके जो, जैसे हमने एग्जांपल भगवत गीता में भी दिया था, उसके जो घोड़े हैं वो दौड़ रहे हैं, वासना वाले घोड़े, और वो उनको कंट्रोल करने में असमर्थ है। जबकि रामचंद्र जी में ये वाला एस्पेक्ट एकदम नहीं है, वो उपासना में है, वो वर्शिप, डिवोशनल प्रैक्टिस में है। तो डिज़ायर्स की हमने बहुत बात की हुई है, तो ये हम समझ सकते हैं। उपासना की भी हमने बात भगवत गीता में की है, बट हमें ये जस्ट आपको ट्रिगर करने के लिए, अगर हम राम और रावण का डिफरेंस देखें तो उनकी बेसिक जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो इतने डिफरेंस है कि एक में वासना है और एक में उपासना है। लेट अस लीव दिस, बिकॉज आगे वाला भी हम लोग डिस्कस करना चाहेंगे। शत्रु और वैरी का भी बहुत इम्पोर्टेंट एक डिफरेंस है। जो शत्रु है वो एनिमी बाय कॉन्फ्लिक्ट है, और जो वैरी है वो एनिमी बाय हेट्रेड है। तो जो रामचंद्र जी हैं वो रावण को अपना शत्रु समझेंगे। वो उनको एक कॉन्फ्लिक्ट है और उनको रावण को हराना है और वो हराएंगे। बट अगर उन्होंने हरा दिया, वो उस पर्सन से हेट्रेड नहीं करते। जो रामचंद्र जी का ये एक ट्रेडमार्क आप कह सकते हो कि उनको में हेट्रेड नहीं है। जब आपने कोई बुरा कर्म किया है तो उसकी वो सजा अगर मिल गई और वो अगर रिपेंट भी कर रहे हैं जिसने ऐसा किया है, तो उनकी शत्रुता खत्म हो गई। उनकी वैरीपन नहीं है, उनको उसको हेट्रेड या वेंजेंस के तौर पे नहीं देख रहे हैं। जबकि जो रावण की जो हेट्रेड है वो वैरीपना की है, वो डीप एनिमोसिटी और वेंजेंस की है, वो इमोशनल, इंटरनल और ऑब्सेसिव ड्रिवन है। और वो ऑफ कोर्स उसका जो रिवेंज सीकिंग, ग्रज, हेट्रेड, ये अंदर उसका बैठ गया है, लॉन्ग लास्टिंग है, और उसका ये हिडन एजेंडा है। और एक जैसे आग उसके अंदर जल रही है, उसको सिर्फ एक युद्ध में रामचंद्र जी को हराना नहीं है, उसको एक अंदर से एक हेट्रेड है। और इस तरह का जो बिहेवियर है वो एकदम ही विपरीत है रामचंद्र जी के, कि वो अगर कोई उनसे कॉन्फ्लिक्ट में है तो वो जरूर शत्रु है, बट वो कॉन्फ्लिक्ट अगर खत्म हो गई तो वो शत्रु भी नहीं रहा।
ये मुझे बहुत प्रिय है, ये जो फ्रेज है, और इस पे आप लोगों को भी अच्छा लगेगा। ज्ञान का अहंकार, जो नॉलेज है उसका ईगो। रावण की अगर पतन का सिंगल मोस्ट कोई कारण हम ढूंढे तो उसकी कारण ये अहंकार थी। इसको हम नेक्स्ट वीडियो में और इलैबोरेट करेंगे। तो ज्ञान का अहंकार, ये रावण का कैरेक्टरिस्टिक्स है। एक सेंस ऑफ सुपीरियरिटी है, एरोगेंस है, ये बिलीफ है कि वो सबसे बेटर है, मोर एनलाइटेंड है, मोर पावरफुल है। ईगो उसकी एकदम डिटरमिन करती है उसके सारे एक्शन को, एकदम क्लोज माइंडेड है। ह्यूमिलिटी नाम की ज़ीरो चीज़ है। डिसरिगार्ड है बाकियों के पर्सपेक्टिव का। ऐसा नहीं है कि उसको उपदेश देने के लिए बाकी लोग नहीं थे, पर एकदम ही उनके व्यू पॉइंट को डिसरिगार्ड करता है। डॉगमेटिक है, ओवरली क्रिटिकल है, डिफरेंट आइडिया जो थॉट्स मिलते हैं उसको डिसमिस करता है बड़ी बुरी तरह। इस कंपैरिजन में अगर आप रामचंद्र जी को देखें तो जहां रावण को ज्ञान का अहंकार है, वहां रामचंद्र जी को अहंकार का ज्ञान है। उनको पता है कि ये जो अहंकार चीज है, जो ईगो है, ये हमारे कैरेक्टर को एकदम खोखला कर देगी। उनकी जो अवेयरनेस है, अंडरस्टैंडिंग है अपने ईगो को के बारे में, वो उनका बिहेवियर इन्फ्लुएंस करती है, उनके थॉट्स को प्रेरित करती है, और उनके जो इंटरेक्शन होते हैं सारी दुनिया के साथ, वो उसको डिटरमिन करती है। तो एक सेल्फ डिस्कवरी के पाथ पे वो चलते हैं, पर्सनल ग्रोथ के, स्पिरिचुअल एनलाइटमेंट पे, और वो रिकॉग्नाइज करते हैं कि जो फॉल्स सेंस ऑफ इम्पोर्टेंस है, ये अपने आप को, जो हमने भगवत गीता में भी डूअरशिप की बात की थी, डिटैच्ड एक्शन की बात की थी, वो सब ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं रामचंद्र जी दर्शा रहे हैं कि उनका जो इम्पैक्ट है वो एज अ डूअर नहीं है। ना तो उनको रिजल्ट पे उनका हक है, और ना ही वो डूअर है किसी एक्शन के। उनको बस डिटैच होके अपने ईगो से अपना जो एक्शन है एज अ सैक्रिफाइस टू गॉड, जो शिवा के भक्त थे, तो वो करते रहना है, और एक डीपर अंडरस्टैंडिंग अपने आइडेंटिटी की बनाते रहनी है। वो इवॉल्व करते रहनी है, अपने ईगो ड्रिवन कॉन्सेप्ट्स को, एस्पेक्ट्स को कैसे और कंट्रोल करें। तो वो कैसे करेंगे? और ज़्यादा कंपैशनेट होंगे, और ज़्यादा ऑथेंटिक होंगे, और हारमोनियस रिलेशनशिप्स को फ्लरिश करते रहेंगे। तो ये जो दोनों डिफरेंसेस हैं, ये मुझे बहुत ही अच्छे लगे, और आई होप यू आल्सो फील इसमें बहुत पावर है। दूसरा जो बहुत अच्छा डिफरेंस है वो है कि जो रामचंद्र जी हैं वो अपनी पूरी शक्ति लगाते हैं साधना को पाने के लिए। तो साधना को पाने के लिए रामचंद्र जी शक्ति लगा रहे हैं, और उल्टा रावण साधना कर रहा है शक्ति को पाने के लिए। तो दोनों शिव जी के तो भक्त हैं, but Ram is interested in using all his Shakti, all his power to achieve a spiritual connect with Lord Shiv. तो spiritual connect can arise only from determined effort, वो कर रहे हैं। His aim और objective is साधना। उनका aim, objective power नहीं है। उनको ये पता है कि अगर उनकी spiritually connect हो गई righteousness के पाथ पे, तो अगर वो धर्म के पाथ पे चलेंगे तो वो शिव जी ऐसे कुछ भी नहीं करेंगे जो उनकी हार हो। तो वो उस पाथ को खोज रहे हैं, उस पाथ को अचीव करना चाह रहे हैं। सो साधना वाज ए सैक्रिफाइस टू डू गुड फॉर एवरीवन। और उसके टोटल विपरीत में ये रावण का जो कैरेक्टर है, वो साधना को टूल की तरह यूज कर रहे हैं शक्ति को पाने के लिए। सो रावण वाज इंटरेस्टेड इन डूइंग साधना विद द पर्पस ऑफ गेटिंग शक्ति, टू कंट्रोल, टू बिकम ऑल पावरफुल, सो दैट ही कुड बी फियर्ड and could spread his reign of terror everywhere. तो उनका उद्देश्य साधना को पाना नहीं है, उनका है कि साधना के थ्रू मैं शक्ति को पालूं। तो उनकी वो लस्ट फॉर पावर, जैसे हमने पहले कहा, वो बहुत हाई है, और वो अपनी पॉलिटिकल मैनिपुलेशन के लिए धर्म को कंट्रोल करना चाह रहे हैं। जहाँ रामचंद्र जी धर्म का आश्रय लेके चाह रहे हैं कि मैं राइटियसनेस पाथ पे चलूं, ये रावण जी चाह रहे हैं कि मैं धर्म को ही कंट्रोल करना चाहूँ।
तो निश्चित है जो अधर्म की तो हार होनी ही है। तो ये मुझे ऑल्सो आई फेल्ट दिस इज ऑल्सो वेरी पावरफुल, और दिस इज वन ऑफ माई मोस्ट प्रीशियस कंपैरिजन्स जो मुझे बहुत अच्छा लगता है, आपको भी शायद अच्छा लगेगा, कि दोनों देखो शिव के भगत हैं। जो रामचंद्र जी आप देख रहे हो शिव की उपासना कर रहे हैं अपने वे से, और रावण भी शिव की उपासना कर रहे हैं अपने वे से। वो फिजिकल ऑस्टेरिटीज और हार्डशिप्स में कर रहे हैं, और रामचंद्र जी एकदम काम कंपोज्ड वे में कर रहे हैं। शिव से पाना और शिव को पाना, ये दोनों का डिफरेंस है। शिव से पाना, ये रावण जा रहा है, वो शिव को वर्शिप करना चाह रहे हैं डिफिकल्ट इम्पॉसिबल पेनेंस और सैक्रिफाइस से। उनका मोटिव है कि किसी तरह से शिव प्लीज हो जाए और शिव उनको कुछ अपनी बून्स दे दें, कुछ उनको जो हथियार हैं या ऐसे कुछ है उनको ग्रांट कर दें, जिससे वो और पावरफुल हो जाए, कि उनको उनकी जो डिफीट है वो इस त्रिलोक में नहीं हो पाए। और जैसे ही बून मिलता है वो और एरोगेंट हो जा रहे हैं। और शिव से पाना से कहीं ज़्यादा इम्पोर्टेंट और पावरफुल है शिव को पाना। जो रामचंद्र जी का एटीट्यूड है, वो रामचंद्र जी कभी भी शिव जो पूजा करते हैं रामचंद्र जी, वो उनसे वरदान नहीं मांगते, वो ये नहीं मांगते कि मुझे ये चीज़ दे दो, वो सिर्फ उनसे ब्लेसिंग मांगते हैं कि आपको जो बेस्ट आप मेरे लिए समझो वो दे दो। आप इसको जो कृष्ण जी का उपदेश था उससे भी रिलेट कर सकते हैं, कि उन्होंने डिसाइड किया हुआ है कि शिव जी ने कि रामचंद्र जी के लिए बेस्ट क्या है, तो उन्हीं को डिसाइड करने दो, और वो उस चीज़ की ब्लेसिंग मांगते हैं। और जैसे ही वो ब्लेसिंग मिलती है वो और हम्बल हो जाते हैं, वो और शिवा के भक्त बन जाते हैं। तो शिव को पाना, शिव जी को ही पा लिया, तो शिव जी को अगर पा लिया तो उनके सारे अस्त्र तो मिल ही गए उनको। और शिव से पाना, मुझे ये दे दो, मुझे वो दे दो। तो आजकल के युग में मुझे ये बहुत इंपॉर्टेंट लगा, बिकॉज आजकल हम जो जितने गुरु शुरू के पीछे भाग रहे हैं, वो ये दे दो वो दे दो के पीछे भाग रहे हैं। तो वो गुरु जी से पाना तो छोड़ दो, और शिव को पाना की बात अगर हम करें तो बहुत बेटर होगा। Of course, this was on a lighter vein. So, concluding, I would just like to wish everyone happy Diwali once again. Just before that, मैं ये चाहूँगा कि just as a precursor to the next video बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, कि हमने रामचंद्र जी की स्टोरी ये बार सुनी हुई है। मैं आपको कुछ ऑल्टरनेटिव नैरेटिव्स बताऊँगा, जिसमें आपको रामचंद्र जी का और रामायण के एपिसोड में जो भी कैरेक्टर्स के जो भी डिसीजन मेकिंग हुई है अलग अलग एपिसोड में, उनके बारे में अगर आपका कोई क्वेश्चन मार्क है, कोई डाउट है, वो मैं क्लियर करने की ट्राई करूँगा, उसका एक प्रोफाउंड रीज़न देने की ट्राई करूँगा। जैसे पहले भी कहा है, रामचंद्र जी अलग जो कैरेक्टर्स हैं वो इतने हाई मॉरल प्लेन में अपना डिसीजन लेते हैं, और हमें कलयुग में कहाँ समझ आएगा जो त्रेता युग में उन्होंने डिसीजन दिया है। बट हम एक ऑल्टरनेटिव में आपको जस्टिफिकेशन देने की कोशिश करूँगा। ऑल्सो बहुत सारे सिंबलिज्म हैं, हम जब स्टोरी बोलते हैं और वो स्टोरी लाखों सालों से मौखिक ओरल ट्रेडिशन से पास ऑन हो रही है, और बहुत लेट जाके उसको डॉक्यूमेंट किया गया है, तो इतने सारे उसमें से एडिशंस हुए हैं, जिसमें उसको इंटरेस्टिंग बनाने के लिए बहुत सारे सिंबलिज्म यूज़ हुए हैं। हम उस सिंबलिज्म की लॉजिक में अगर जाते हैं तो फंस जाएंगे। तो हमें उसका जो कंटेंट है, उसका जो इंटेंट है, वो समझना है, और उसका मेन लॉजिक जो है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, बिकॉज वो स्टोरी एक चीज़ समझाने के लिए थी। वो क्या समझा रहे हैं वो हम समझ लें, और उसके लॉजिक में, उसके साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन में बेकार एनालिसिस करने की हम कोशिश ना करें। तो दिस विल बी इन द नेक्स्ट वीडियो. Again, want to wish you a very very happy Diwali. I hope this is a series which is close to your heart, and may all of us become Rammay. हमारा जीवन रामचंद्र जी जैसे बोलते हैं उन पथ पे हम चलें. जय श्री राम. God bless us.